जी राफिया, over to you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. So welcome to our webinar जहाँ हम डिस्कशन करेंगे. It's like a communication between आप किसी के दरमियान भी आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं and then उसको हम आगे लेके जाएंगे. टॉपिक हमारा जो होगा वो है स्टेट ऑफ एजाइल इन पाकिस्तान. ठीक है. और आई एम राफिया शाद. मैं बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. इट्स लाइक 2 years, more than 2 years, and everyone already knows Khurram. And टुडे जो हम जिनसे डिस्कशन हमारे पैनल में बैठ रहे हैं वो नवीद रमजान है और मिसाम अब्बास हैं. ठीक है. फर्दर आपको मैं बताती चलूँ कि आपको इन चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा. और वो ये है कि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की में क्या स्टेट है. फर्दर इसके साथ साथ आप जो है वो अर्न कर सकते हैं स्क्रम एजुकेशन आप 1 पॉइंट. नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि जूम के अलावा ये जो सेशन है हमारा वो लाइव आपको मिल सकता है फेसबुक पेज पे. जो पेज हमारा पेज है उस पे. अच्छा. और कुछ इस तरह से अगर आप बात नहीं कर रहे और आपका माइक्रोफोन ऑन है तो इसको प्लीज़ बंद कर दें. इसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चंस रेज करना चाह रहे हैं जो कि फ्रीली आप उसको क्योंकि इसे हेल्दी डिस्कशन बनाना चाह रहे हैं तो जितने आप क्वेश्चंस रेज करेंगे वो उतना बेटर है ताकि मोर हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें. आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ओवर द जूम. क्यूए हमारा है, वहाँ कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप कर सकते हैं. फिर इसके साथ साथ आप फेसबुक के पेज पे जो है हमारे क्वेश्चन आप कमेंट पे आप क्वेश्चन अपना रेज करें और उसको क्वेश्चन को हम इन बिटवीन इस डिस्कशन में वो हम ऐड करते जाएंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट ओवर टू मिस्टर नवीद रमजान. वो आगे इसको कंटिन्यू करें. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम should it be in English or in Urdu or what you suggest? हाँ, is there anyone who wants to have it in English? लेकिन Kelly, I think joined. we have Kelly as a guest. Okay, so let's do it in English. Okay. नहीं, देख लेते हैं Kelly, if is it okay we can take it in English and Urdu? I don't know if it's it's okay with both. हाँ, हम मिक्स कर लेते हैं. चलें, जबरदस्त. Okay guys, this is Naveed Ramzan. Yeah, it's Okay, I have been working in software development since 2006 and working in Agile project management since 2009. In 2014, I'm one of the founding members of Pakistan Agile Development Society, which is working to increase the agility in Pakistan business or IT industry. Motive of that society is that we can build up a community of agile lovers in Pakistan so it can buzz in all over the world. It's very good to see that there are not only one, but there are few more entities or organizations who are working on same objective. So it's very good point to do collaboration with all these entities, organizations to you can say that to add more value to our Pakistanis. So thank you very much, Khurram and Rafia, for inviting us in this session, and especially the pace. As Khurram said that it's been 2 years that we were trying to catch up, but somehow it didn't get success. And today we have done it. Thank you very much. Mr. It's your turn to introduce. Okay, sorry. So, Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well and being safe as well during this pandemic. I've been part of this financial industry for around 14 years. I started using the Scrum or the Agile methodologies during my last experience with my employer back in 2015. So from there, I learned about the Scrum. Before that, I was doing the waterfall sort of project management methodology. But that fascinated me. We were working on a product that was acquired by Google
and they had the only methodology for implementation of that product was accelerator. So they named it, or they coined it as an accelerator methodology, but it was a mixed blend of Scrum, Kanban, DSTF. So it was a good experience, and since then I started using Scrum as a agile project management methodology. It's going good. I joined the Pakistan Agile Development Society in this year, though I've been part as a volunteer for a couple of years now, but now I've been giving the role of vice president for the training portfolio. And one of the initiatives that we jointly took is to have some webinars with the industry guys. We requested Horam as well to deliver a talk a couple of days ago. That was also good. So it's going good. Agile, obviously, we all love to be part of this initiative, and so is the motive of Pakistan Agile Development Society, or be it PASE, like the Quorum is maintaining or running that platform. So that's it from my side as the intro. Okay, so I don't know if I need to say so much. I am trying to get in touch with Kyle if you prefer English or Urdu. मेरा मकसद ये था कि हम पिछली दफ़ा वो इंग्लिश में करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसको उर्दू में भी करें. So once again, if you have to say something, if you want to put a question, feel free to put in any language, either English or Urdu. The reason being, this session is for you and by you as well. If you are hesitating to put our questions, then we are not getting much out of this session. So coming back to me, for me, I think जो मेन मकसद ये था कि इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलने का along with Zishan, कि पाकिस्तान में एजाइल की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जितनी पहले से थी, I mean, being my experience from as well, तो उसमें ये था कि we really started कि हम इस awareness को पाकिस्तान में लेके आएं by doing some courses. We have been running meetups for almost 2 to 3 years now, online meetups, physical meetups as well. And then we started working with the CSM courses, CSPO. And as I mentioned, we also be bringing facilitation and coaching courses at the end of this month as well. And the purpose of this conversation is just to have a kind of a conversation with Misam and Naveed, who are in Pakistan, के क्या चीजें हैं, what challenges are there, and हम उसको किस तरह overcome कर सकते हैं. So this is in a nutshell the topic is. So Naveed and Misam, क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू किया जाए इस दास्तान को? Well, I think पहले हम देखते हैं कि currently क्या स्टेट है, जो टाइटल है स्टेट ऑफ एजाइल इन पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान में इस लेवल क्या है एजिलिटी का. तो देयर आर कंपनीज जो कि बहुत अच्छे एजाइल को अडॉप्ट कर चुकी हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट. कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी मीडियम लेवल पे हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने ट्राई किया था बट दे डिडंट गेट मच सक्सेस. मे बी दे जस्ट डिड कॉपी एंड पेस्ट, और फिर उनको समझ आया कि ये हमारे लिए है ही नहीं. ठीक है, बट देयर आर स्टिल कंपनीज जो अभी जस्ट सोच रही हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं, या हमारे लिए है या नहीं. तो डिफरेंट कह लें कि लेवल्स ऑफ एजिलिटी हैं इन पाकिस्तान, और इसीलिए जो पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी सेशन रखती है वो डिफरेंट माइंडसेट के डिफरेंट लेवल्स को कवर करने के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स में रखे जाते हैं. कुछ बहुत बिगिनर लेवल के होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के होते हैं, ताकि जिस तरह का भी बंदा ज्वाइन करे उसको कुछ ना कुछ हासिल हो, वो अभी नहीं तो 2 महीने बाद जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सके. तो यस, मल्टीपल लेवल्स हैं, हर लेवल के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो टीम चैलेंज आ जाता है. क्योंकि पहले तो मेरे पास सारा कुछ मुझसे पूछे बगैर काम नहीं होता था, नाउ टीम खुद कर रही है, और इसकी क्या श्योरिटी है कि वो सही चीज़ें पिक कर रही है. देन कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है. और काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं डिफरेंट लोगों को जो ये माइंडसेट के साथ सामने आते हैं.
जिस तरह आपने ये हाँ नवीद, आपने कुछ चैलेंजेस बताए तो आई थिंक जो एक्सप्लोर तो हम करते रहेंगे, कोई एक चैलेंज हम पिक करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपने भी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में इतना टाइम गुजारा माशाल्लाह, तो आपके नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस चेंज को एक्सेप्ट करना फॉर सी लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि चेंज जो है ना वो दो तरीके से आ सकती है, तो टॉप टू डाउन है या बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप में तो बहुत देर लगेगी, टॉप टू डाउन जो है या टॉप टू बॉटम जो है वो क्विक होती है, फास्ट होती है। और अगर हमारी टॉप मैनेजमेंट ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो नीचे बहुत कम चांस है कि आएगी। आई नो वन ऑफ द कंपनी इस्लामाबाद, जब उन्होंने एजाइल आज से 10-12 साल पहले इनिशिएट किया तो उनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एतराज़ात किए, ठीक है। आफ्टर डिबेट्स, नंबर ऑफ डिबेट्स, दैट गाय रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। अच्छा, काफी टफ टाइम मिला उसको। काफी टफ टाइम मिला उसको क्या? बिल्कुल, मतलब वो उनके लिए सारे क्वेश्चंस थे कि भाई अब मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे आप लोग कि आगे रिलीज में क्या जाना है या क्या नहीं जाना है, या इसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, तो वाई वी आर सिटिंग हियर, ठीक है, इस तरह के अच्छा। क्वेश्चन थे। लेकिन जो सीईओ था उसने बड़ा इसको पॉजिटिव, पहले उसको मोटिवेट किया, बट सम हाउ जब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स बेटर कि हम अच्छे रिजल्ट, अच्छे रिलेशन के साथ बाय बाय करें। ही रिजाइन आफ्टर 2 or 3 years, he came back, ओके, आई वाज रॉन्ग बट इट्स द टाइम कि अब मैं भी कुछ चीज़ें अपनी इम्प्रूव कर चुका हूँ, एंड आई थिंक एजाइल इज़ द बेस्ट मॉडल। इफ़ देर इज़ सम कैपेबिलिटी कि मैं दोबारा इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ इस कंपनी में, तो डू लेट अस नो, ठीक है। तो ऐसा एक ये केस है, बट आई नो एक और कंपनी है जहाँ मैंने खुद तकरीबन 3.5 साल काम किया है, वहाँ पे जो सीईओ थे, जब उन्होंने पहले सारी चीज़ें देखी कि ओके एजाइल इस तरह से हम काम करेंगे और ये होगा, और उन्होंने अपना रूम जो था उसको एज अ मीटिंग रूम बना दिया, और वो खुद हमारे साथ हमारे टेबल पे आकर बैठते थे कि अच्छा। वो भी ऐसे बैठते हैं, वो भी ऐसे बैठते हैं। ही इज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर मलिक, कि उनका रूम जो है वो मीटिंग्स के लिए चल रहा होता है और वो खुद बाकी स्टाफ के साथ वहीं बैठे हुए हैं, एंड उनको अगर आप सर कह देंगे तो भी ठीक है, नहीं कहेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री में कि आप सर के बगैर अगर सीधा नाम ले देंगे अपने बॉस का, तो वो थोड़ा सा आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ही इज फीलिंग कि भाई ये मुझे ऐसे ही आपने नाम ले दिया मेरा। अच्छा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री में, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा कम होना शुरू हो गया, मतलब लास्ट अगर मैं 1-2 साल की बात करूँ तो ये काफ़ी हद तक कम हो रहा है, बट स्टिल इट्स देयर। और इस चैलेंज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें मैं कहूँगा कि लीडरशिप एंड देन सर्वेंट लीडरशिप, इस पे हम सेशंस तो सुने ही सुने, लेकिन हम कुछ बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक रीडिंग जो है ना हमने वो छोड़ दी है और उससे हमारा पेशेंस खत्म हो गया बहुत सारा। और सर्वेंट लीडरशिप में पेशेंस इज द मेन की, राइट। तो ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो पीपल कैन डिफर विद इट, लेकिन ये कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो एक्सेप्टेंस है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, स्टिल इट इज़ देयर इन पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी ने कई बार सोचा कि हम उन लोगों को टारगेट करें, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एक कोर्स डिज़ाइन किया जाए 4 to 5 सेशंस का, बट समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं अभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके, बट इट अच्छा। इज इन देयर पाइपलाइन कि ये होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की चेंज होने से जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज है वो स्पीडी होगी, इंस्टेड ऑफ कि वो बॉटम टू टॉप पे हम जाए। अच्छा, यानी नवीद, मैं जहाँ तक आपकी बात समझ सका हूँ, मैं शायद जो से नोट्स भी दे रहा हूँ कि क्या डेलीगेशन का मसला है कि लोग अगर अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको डेलीगेट कर देंगे कि वो फील करते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा रोल खत्म हो जाएगा, हमारा रोल खत्म है। दूसरा आपने लीडरशिप का बताया, चले काफी इंटरेस्टिंग। विसम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सो फार, आप क्या शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, नवीद के जो एनालिसिस हैं ऐसा ही है, बट उसमें मेरा एक छोटा सा चेंज है ओपिनियन के, जो चेंज होता है वो टॉप टू बॉटम आता है। गेस बॉटम टू टॉप रेवोल्यूशंस आती हैं, चेंज नहीं आता, वो फिर कुछ और ही बनता है। अगर बॉटम से चीज़ें शुरू हो वो फिर एक तहरीक बनती है, उसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ऐसा ही एजाइल में भी है, पाकिस्तान या किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम उठा लें, मोस्टली यहाँ पर क्या जो
चूंकि खाली एजाइल अभी तक हमने जितना भी पढ़ा या जितना भी देखा या माइंडसेट है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हद तक ही है, वेयरएज एजाइल कोई इस खास तबके और ख़ास चीज़ के लिए नहीं है। अगर आप एसेंस देखें उसकी या जो उसकी थ्योरी देखें जिसमें सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स की बात होती है, यू शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कमांड्स। जब तक सी लेवल इंटरेस्ट नहीं लेगा, बॉटम से अगर कुछ भी होता रहेगा वो उस तरह से उभर के नहीं आएगा, उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगी, ना ही उसके उस तरह से नताइज होंगे। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो मेरे पास एक्सपीरियंस में, चूँकि मैं अरसा कंसल्टेंसी फर्म के साथ शामिल था और वहीं से हमने 2015 में जहाँ के बड़ा ट्रेडिशनल वाटरफॉल मेथोडोलॉजी पे काम करते थे, इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। We were, successive in implementing it in certain products. There are certain challenges where you are bound to do with the waterfall or go with the waterfall methodology because of the architecture or because of the application that you are using. ये भी एक चैलेंज है, ज़रूरी नहीं है कि one size fits to every. You need to look at your product as well, जो आप अपने कस्टमर के लिए क्लाइंट को दे रहे हैं कि क्या वो भी सपोर्ट कर सकती है या नहीं। देन अगेन बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ है, आई गेस ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ही होगा, लेकिन ये बर्रे सगीर या सब कॉन्टिनेंट में ज़रा ज़्यादा पाया जाता है कि हम या मैं जो हूँ वो मुझसे पूछे बगैर मेरी टीम कोई काम ना करे। तो सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ ऑर्गेनाइज ज़रा बज़वर्ड तो लगता है, लेकिन अगर ये होने लग जाए तो लाइन मैनेजर्स को सबसे पहले खटकता है कि मुझसे पूछे बगैर डिसीजन ले लिया यार, मतलब ये बिल्ड कैसे चली गई, ये कैसे हो सकता है। आपने टाइमलाइन कमिट कर दी अपना, अगर आप प्लानिंग होकर ही स्टार्ट करना शुरू कर दें तो एस्टिमेशंस में वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट साहब पहले बैठे होंगे, वही कैसे चैलेंज करना शुरू कर देंगे कि आई एक्सपीरियंस दीस थिंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स। हम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैंक के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, वहाँ हमारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाज अ बिट, उन्होंने टीम को ज़रा डांटना शुरू कर दिया कि यार मतलब ये कैसे आपने एस्टिमेशंस दे दिए, इस तरह नहीं होता, कि मेरे साथ बैठे हैं फिर मैं बताऊंगा फिर एस्टिमेशंस क्या होंगी। एंड देन अगेन अगर आप डेली स्क्रम को करते हैं इम्प्लीमेंट और वहाँ प्रोडक्ट ऑनर आपसे कोई चीज़ पूछता है, वो कोई चेंज की बात करता है, यू आर एडॉप्टिव रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज, बट देन अगेन वो आर्किटेक्ट भाई जिन्होंने सारा खड़ा किया है इमारत को, उनसे पूछे बगैर आपने कोई चेंज और कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो वो एक बड़ा बवाले जान बन जाती है, अवजाब आ जाता है कि ये तो आर्किटेक्ट को फला 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 चीज़ कर देगी, तहस नहस हो जाएगी प्रोडक्ट। इस तरह के चैलेंजेस भी हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्री चूंकि इवॉल्व होती जा रही है, लोगों को नज़र आ रहा है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो बज़वर्ड से अब थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे जा रहा है। अदरवाइज हमने बड़े वो कार्टून्स देखे होंगे जो कि एक स्टेट ऑफ एजाइल को प्रमोट करते हैं या बताते हैं कि कंपनीज में किसी सी लेवल ने एजाइल का सुना कि जी मैंने एजाइल का वर्ड सुना है तो कल से हम भी एजाइल हैं। तो आपकी जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट या प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, 4 बंदे कम कर दें जी, 2 बंदे कर दें क्योंकि हम एजाइल हो गए। आपने अगर कुछ डिलीवर करना है तो अब आप उसकी बिल्ड को स्प्रिंट कहना शुरू कर दें। तो वो लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट ये भी था कि शायद ये स्प्रिंट और स्क्रम बस दैट्स इट एजाइल हो गया। बेशक वो स्प्रिंट जो है वो 6-6 महीने बाद डिलीवर हो रही है, उसमें कोई सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट हो ना, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है। सही, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। राफिया, हमारे पास कोई क्वेश्चंस हैं कि हम उनको टेबल पे लेके आए? काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज हो रहे हैं। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि फरहान जावेद ने हमारे जूम के कमेंट में किया है। My question is regarding respondent demographic. Which type of organization in Pakistan are more respondent, and among those, which level of stakeholders are more respondent to agile? और क्या कहते हैं नवीद एंड ये हमारा मिसन? क्वेश्चन फरहान ने किया है, लेकिन वो कहना शायद ये चाह रहे हैं फरहान, if you are जी नवीद। वेल इसके लिए देखें वो स्टिल वही बात आ जाती है कि ये कंपनी की सी लेवल मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि इफ़ दे हैव गुड एक्सपीरियंस तो वो फ़ौरन इसको अडेप्ट करेंगे या फ़ौरन इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। जिन लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको निगेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यूजुअली हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, वो जो एक लाइन है हमारी, हम लोग यूजुअली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम स्टैक ओवरफ्लो से कोड कॉपी करते हैं, अपने बारे में पेस्ट करते हैं, रन करके देखते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं चेक करते हैं समहाउ, ठीक है। ये एक अनफॉर्चुनेट कह लें।
तो हम किसी भी मॉडल को जब हम अडेप्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश यही होती है कि फलां कंपनी ने किया है, लेट्स सी उन्होंने ये स्टेप्स लिए थे, क्योंकि उनका सेशन सुना बड़ा अच्छा किया, उन्होंने बड़ी सक्सेस की बात की, तो मैं भी उन्हीं को पसंद करता हूँ। क्या कह रही हैं? इफ इट्स गुड एंड हैव गुड रिजल्ट्स इट्स वेरी गुड, और अगर वो अच्छा नहीं गया तो फिर वो लोगों का ना एक माइंडसेट बन जाता है कि जी ये हमारे लिए नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँ तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या मेरी ऑब्जर्वेशन ना एग्री करें आप इससे, जिन कंपनीज के सीईओ ग्रोथ पे बिलीव करते हैं ना कि वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है या आफ्टर 6 मंथ्स वो कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें लर्न करके आते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन कंपनीज में एजाइल इम्प्लीमेंटेशन की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। जो कंपनीज आज से 5 साल पहले जिन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही थी और वो तब खुश थी, वो अब भी उन्हीं पे ही काम कर रही हैं और वो खुश हैं, क्यों? उनके पास कस्टमर है, दे आर गेटिंग गुड मनी, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं एजाइल पे आने के लिए। क्यों? वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद शायद वो कहते हैं कि अगर ना चला तो हमारा लॉस है, जो अभी चल रहा है हम इससे भी जाएंगे। तो जिन कंपनी, अगर मैं इसको सम अप करूँ, जिन कंपनीज के सीईओ जो हैं वो सेल्फ लर्नर हैं, ग्रोथ पे बिलीव करते हैं और अपनी टीम में उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की वो एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, उनमें एजिलिटी की कह लें कि ज़्यादा परसेंटेज पाई जाएगी। जी ज़बरदस्त, अच्छा कमेंट काफ़ी नवीद। मिसम आपका क्या ख्याल है? मैं उसके बाद अपना कुछ ऑब्जर्वेशन भी शेयर करूँगा। नवीद इज़ राइट। मेरा चूँकि ज़्यादा वास्ता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिनटेक्स या फाइनेंशियल मार्केट से पढ़ा है, तो अब जो आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, दे आर क्वाइट आई मीन वेल वर्स्ड विद दीज टेक्नोलॉजीज या विद मेथडोलॉजीज। हाँ, अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जाएँ तो वहाँ एजाइल को आने में शायद अभी भी मज़ीद कोई 5-10 साल लग जाएँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देयर आर सर्टन चैलेंजेस कि वो फ़ौरन से पेशतर एजाइल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करूं तो यस, पाकिस्तान में जो टेक सेवी कंपनीज हैं या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, वहाँ पर इसकी रिसेप्टिवनेस है, वहाँ पर इसको वेलकम किया गया एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि वो किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। एज आई सेड, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क ऑन एसएपी प्रोडक्ट, गूगल, देयर वाज डिफरेंट रेंज. At a certain product, we were unable to implement this methodology because of certain challenges of that product. But largely जो tech oriented या technology driven companies हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में, they are quite receptive to it, whereas other industries, media भी side पर आना शुरू हो गया है। हमारी फार्मास्यूटिकल या मेडिकल की जो इंडस्ट्री है, they have पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक कंपनी है जो ऑपरेट करता है, I guess MTBC के नाम से। They have been practicing it for, I guess, around 5 to 6 years. जो मेरी knowledge में, that they are doing very good job. So it varies from company to company and the customer that you are serving, and again the product as well that you are dealing with. यानी कि अगर फरहान का जो क्वेश्चन था उसको अगर हम अपने समराइज करें कि मेरे ख्याल से हमें सीईओ को पहले इंटरव्यू लेना चाहिए उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कि उस बंदे का क्या माइंडसेट है। आई थिंक इसमें कोई बुरी बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही तो उसमें आई डोंट नो कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो आई थिंक जो एक पॉइंट जो बार बार मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि जो मैनेजमेंट और जो लीडरशिप है वो डिसीजन मेकर है, उनके कुछ कंसर्न्स हैं कि उनके पास से पावर चली जाएगी, उनका एक काम चल रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन इसके अलावा यानी कि क्या यही रियल इशू है? वो इस चीज़ को ये नहीं देखते कि हम गेन कितना कर सकते हैं इसके अलावा, कि एक फॉर एग्जांपल रिलीज अगर उन्होंने 6 से 8 महीने बाद करनी है, और जो एजाइल है इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें ये भी है कि आपकी पर्सनल लर्निंग भी होती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो क्या ये जो लोगों की जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, क्या ये ओवरलुक कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर? Well, should I answer?
गो हेड, कोई भी आंसर कर सकता है, कोई मसला नहीं। ओके वेल देखें, जो ये एक्सपेक्ट है टीम्स की लर्निंग का, डेफिनेटली ये एक अपनी वैल्यू रखता है। बट अगर मैं इफ आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, मेरे लिए डिलीवरेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ मतलब पाकिस्तान में छोटी कंपनीज में या मीडियम कंपनीज में या इवन बड़ी कंपनीज में भी वो ये कहते हैं कि आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, ये जो काम आप कर रहे हैं ये भी लर्निंग ही हो रही है ना आपकी। एंड एम्प्लॉय क्योंकि उसको अटेंड सैलरी से गर्ज है, वो बात मान लेता है सीईओ की। आपने एक बात की कि सीईओ का इंटरव्यू होना चाहिए, यस इट शुड बी। लास्ट 2 साल से मैं जिन कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ या अभी मैं एक कंपनी के साथ फुल टाइम एसोसिएटेड हूँ, तो 2 इंटरव्यू उन्होंने मेरे किए, तीसरा इंटरव्यू मैंने उन्होंने कहा कि मेरी एक मीटिंग रखें जो आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो आपकी यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उनके साथ, कि जी वो एजाइल यूज़ कर रहे हैं। और उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने कहा यस वी आर यूजिंग जीरा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा कुछ और है आप एजाइल यूज़ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पीएमओ इसका आंसर करेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट मतलब माइंडसेट्स बने हुए हैं। एक तो यही है कि अगर हम जीरा यूज़ कर रहे हैं तो हम एजाइल हैं, ठीक है। तो बट डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों को एक रियलाइज होता है कि ओके एजाइल कुछ और है, जीरा कुछ और है। अब जीरा में ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी तो चली गई थी, ठीक है। तो यस, आई थिंक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया नवीद, क्योंकि यही एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो एजाइल है वो डेवलपमेंट के बारे में, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। हालांकि इसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ भी होती है। आपने ये सुना होगा लीडरशिप एजिलिटी, और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी भी आ जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट चेंज होती है तो कितनी जल्दी मार्केट को अडॉप्ट कर सकती है। अडॉप्ट करेगी, बिल्कुल। और लीडरशिप एजिलिटी का ये है कि अगर कोई नई चीज आती है तो उसमें मुझे अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना है। तो आई थिंक ये एस्पेक्ट शायद काफी इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों को रियलाइज किया जाए कि ये आप एजाइल सिर्फ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की नहीं है, कि आपके पर्सनल बिहेवियर की भी है। और जहां तक मैंने देखा है टीम जो हैं वो काफी मोटिवेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम में हम काम कर रहे हो और उसमें आपसे पूछा नहीं जाए कि यार आपका क्या ख्याल है, आप क्या इससे मुख्तलिफ सोचते हैं, तो उस टीम में क्या मोटिवेशन रहेगी? वो फिर यही एक एनवायरनमेंट बन जाएगा जी, ऊपर से ऑर्डर आए और हमने करना है। अच्छा, वो जो जीरा का आपने पॉइंट किया था ना, ये काफी कॉमन बनता जा रहा है कि अगर आप जीरा यूज कर रहे हैं या तो आप एजाइल हैं। दूसरा, मैं कुछ 1-on-1 प्रोफेशनल कोचिंग भी की ऑनलाइन पाकिस्तान में लोगों के साथ, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता था कि आपने एजाइल होना है, आप इस तरह करें, वो जो 15 मिनट की जो डेली मीटिंग होती है ना, वो कर लो वो कर लो तो बस ठीक है, एजाइल है। तो मुझे इस कन्वर्सेशन से ये फील हो रहा है कि जो वाई है ना, जो मेन अंडरस्टैंडिंग है कि ये हम चीज करेंगे तो इसका फायदा क्या है, वो मिसिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये दवाई खाएंगे तो इसका हमें बॉडी पे क्या असर होगा, अगर ये हम एप्पल खाते हैं तो इसका हमें क्या फर्क होगा। हम सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी जजमेंट नहीं, क्या हम चीज़ों को डायरेक्टली अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि यार वो बाहर वाले लोग जो है ना मुल्क में ये चल रहा है तो हम भी चलाते हैं? क्या कहते हैं मिसम और नवीद? ऐसा है देखें, बज़वर्ड पे हम पहले ज़रा ज़्यादा कैच करते हैं ना, या हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, कोई चीज़ गोरा कर रहा है तो बस आमन्ना सदकना, वो तो बेहतरीन होगी। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वहाँ चल सकती है, यहाँ चल सकती है, नहीं चल सकती, कोई इवैल्यूएशन नहीं होती, जस्ट कॉपी पेस्ट। वो एक भेड़ चाल वाला मुहावरा है कि वो भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। और एसेंस आपको नहीं पता, जब आप एसेंस नहीं करता खोजते या ये नहीं देखते कि यार इससे फ़ायदा क्या होगा, या ये मैं करने भी जाऊँ तो क्यों करने जाऊँ, तो वो फिर ऐसे ही होता है कि आप 6-6 महीने की चीज़ अगर कोई डिलीवर कर रहे हो तो उसको स्प्रिंट का नाम दे दें कि हम स्प्रिंट दे रहे हैं तो वी आर एजाइल, क्योंकि स्क्रम में होता है। हमने 15 मिनट की डेली स्टैंड अप मीटिंग करना शुरू कर दी, वी आर एजाइल। ना तो स्प्रिंट प्लानिंग कहीं होती है, ना टीम से पूछा जाता है,
और अगेन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्क्रम मास्टर का, जो सर्वेंट लीडरशिप वाला एक कॉन्सेप्ट है। वो साहब अभी भी वो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले मोड से नहीं निकल पाते, क्योंकि हम स्क्रम मास्टर अगेन जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर तो ज़्यादा फोकस करते नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका नाम स्क्रम मास्टर कर दिया, तो ये भी एक तरीका है जी, हम एजाइल बन गए, क्योंकि हमारे पास स्क्रम मास्टर है, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर कोई नहीं है, बट अगेन वो हर चीज़ मैनेज कर रहा होता है। ओ विसम, आपने बड़ा ही मुझे एक दर्दनाक याद करवा दिया है। मैं दिसंबर में पाकिस्तान में था, फैमिली विजिट पे था, तो मेरा था कि यार फैमिली लोगों से बहुत मिल लिया, अब कुछ एजाइल का भी काम कर लें। तो मुझे 2-3 कंपनी से इनविटेशन आई, तो मैंने काफ़ी मैं आई वाज रियली ग्लैड कि दे इनवाइटेड मी, वी हैड रियली गुड कन्वर्सेशन। और उसमें भी यही था कि आवाज, आप भेड़ चाल वाला वर्ड आपने आई थिंक बहुत ही टू द पॉइंट कर दिया, लेकिन कब तक हम भेड़ चाल करेंगे? क्या हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी कि फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, क्या हम इसलिए कर रहे हैं कि वो दूसरा कर रहा है? जिस तरह ये कि अगर मुझे कोई तकलीफ है, तो मैं एक मेडिसिन इसलिए खा रहा हूँ कि मिसम ने भी वो मेडिसिन खाई थी, उसको आराम आ गया, तो वो क्या पता उनको कान की दर्द की दुआ और मेरे पता नहीं कहीं बाजू में हो। तो उसमें भी यही वो जिस्ट यही था कि रोल्स शिफ्ट हो गए थे, और उसमें वो यही एडजस्ट करना चाह रहे थे कि अच्छा एक प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हो गया स्क्रम मास्टर भी, तो अब उसने क्या क्या करना है। क्योंकि इसमें यही था कि उन्होंने रोल तो चेंज कर लिए, लेकिन उस बंदे का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल सेम रहा, और उसकी वजह से वो काफ़ी हमारी 2-3 घंटे कन्वर्सेशन रही। तो उनको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपने एक कैब का नाम चेंज कर दिया है, आपने रोल तो चेंज कर दिए हैं, लेकिन वो जो बिहेवियर है उसके ऊपर आपको थोड़ी सी एजुकेशन में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसा ही है, वही नहीं आ, जी नवीद प्लीज। तो पार्टिसिपेंट बोलना चाह रहे हैं। जी जी राफिया। यस, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। लेट्स से अब मेरी करंटली जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो डेली मीटिंग करती है, डेली मीटिंग से वही मुझे एक क्वेश्चन रेज आया। अब उन्होंने रिसेंटली क्या किया है कि उन्होंने जी हम स्प्रिंट पे काम करने लगे हैं, और जो हमारे टास्क हमारे टास्क मैनेजर में होते थे वो एक एक्सेल शीट पे ले आए, और उन्होंने क्या कहा कि ड्यू डेट्स उन्होंने 1 वीक की अपनी डिफाइन कर दी और कहते हैं कि वो स्प्रिंट है। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि हमें अब क्योंकि स्प्रिंट या जो भी अजाइल मैथडोलॉजी है हम ग्रेजुअली अडेप्ट करें, या फिर इसको, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान इंडस्ट्री इसको समझ ही नहीं पा रही, ठीक है, इसके फायदों को, क्या हमें ग्रेजुअली करना चाहिए या फिर हमें एकदम से करना चाहिए, और इन सबको मिलाकर हमें क्या वो पहला स्टेप है जो हमें लेना चाहिए जो कि हमें इस ट्रैक पे लेके चले जाए। आई थिंक सो मैंने yes Naveed and yes, do you want to answer it? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राफिया का। तो अगर मैं जहां तक समझ सका हूँ, राफिया आई थिंक शी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि हम पहला कौन सा वो जो कदम है वो जो yes रखना चाहिए, जिस तरह नील आर्मस्ट्रांग ने वो मून के ऊपर वो रखा था, गोल्डन वर्ड्स बोले थे। तो क्या क्या कहते हैं नवीद और मिसम, कौन सा पहला स्टेप हमें लेना चाहिए पाकिस्तान में मेंटालिटी को, या मेंटालिटी नहीं लेकिन बिल्कुल माइंडसेट को हम कैटर करते हुए उसको लेके चले। देखें, हम जो पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, हम थोड़े से ना पेशेंस लेस हैं। हमें टैबलेट चाहिए होती है ताकि हमारा जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाए। हमें लंबे इलाज से ज़्यादा गर्ज नहीं होती, अगर मैं मेडिकली बात करूँ या ओवरऑल भी। तो एजाइल में भी यही कुछ चलता है। अगर हम उनको कोई लंबा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे ना कि आप पहले माइंड सेट बदलें, फिर आप प्रोसेस की बात करें, फिर आप पीपल की बात करें, या इसको रीशफल कर लें, तो कहेंगे यार छोड़ें, बहुत लंबा काम है, हमें नहीं करना है एजाइल। ठीक है, तो बेहतर जो वे आउट निकलता है वो ये है कि आप एटलीस्ट जो टीम्स आपस में काम कर रही हैं, लाइक अगर 6 लोगों की डेवलपमेंट की टीम है और 3 टेस्टर्स हैं और एक बिजनेस एनालिस्ट है या 2 बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि डेवलपर्स का अलग एक हॉल बना हुआ है, टेस्टर्स का एक अलग हॉल बना हुआ है, बिजनेस एनालिस्ट का एक अलग हॉल बना हुआ है, एंड दे डोंट इवन टॉक विद ईच अदर। ठीक है,
डेवलपर्स अपनी गपशप करेंगे अपने रूम में बैठे हुए, लेकिन वो टेस्टर से बात नहीं करेंगे। वो जीरा पे टिकट बना के उसको साइन करेंगे और वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये तो ऐसे होता है, तुम्हें नहीं पता, ठीक है, मतलब एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो जो मेरे माइंड में या जो जो मैं एक गाइड करता हूँ कि भाई आप टीम वाइज, जैसे 3 डेवलपर्स हैं उनके साथ एक टेस्टर है जो कि उनका मेन टेस्ट कर रहा है उनकी एप्लीकेशन को, इसी तरह जो उनका बिजनेस एनालिस्ट है, आप इन 4-5 लोगों को इकट्ठा बिठाएं, लेट देम स्पीक, कि वो बोलें, वो बात करें। एक जो उनमें वो जो एक फियर है कि मैंने इनसे बात नहीं करनी, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह लें चलता आ रहा है कि डेवलपर्स और टेस्टर्स की नहीं बनती, वो वाला जो एक हर्डल है उसको हम थोड़ा सॉफ्ट करें या रिमूव करें, तो फिर वो जो टीम है ना वो खुद ब खुद ही एक स्प्रिंट में या एक रिलीज में वो अगर थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी, अगले में उससे ज़्यादा होगी, तीसरे में वो खुद ब खुद उनको वो फिर अपनी आपस की जो टसल है ना उससे बाहर निकल के वो फिर बिजनेस के बारे में सोचेंगे, प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। ओके, अब हमारा ये वाला फीचर जो है, बिजनेस एनालिस्ट और बाकी टीम जो है वो इस पर आ जाएगी कि ये वाला फीचर अब हमारा जाना चाहिए। टेस्टर खुद ही उसमें मोटिवेट होकर अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या टेस्ट केसेस बनाना शुरू कर देगा और डेवलपमेंट टीम भी अलाइन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ का जो वो कनेक्टिंग पॉइंट है वो माइंडसेट है, और माइंडसेट आप जिस भी लेवल पे इनिशिएट करेंगे, चाहे वो सी लेवल पे हो या मैनेजर्स में हो या टीम्स में हो, तो वो आउटपुट आने में टाइम लगता है। सी लेवल में टाइम लगेगा, मैनेजर्स में टाइम लगेगा, लेकिन टीम्स में भी टाइम लगेगा, लेकिन उसका बाकियों की निस्बत जो रिप्लाई या रिस्पॉन्स रेट है वो फास्ट है, ठीक है। आपको विदिन 2-3 डेज ही उस टीम में मोटिवेशन नजर आनी शुरू हो जाएगी, बिजनेस ओरिएंटेड डिस्कशन नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो पहला स्टेप हो सकता है जिससे एटलीस्ट हम प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। जो सी लेवल के लोग जो उस वक्त तक थोड़ा हैसल फील कर रहे थे कि शायद हमें इस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दे विल बी मोर टूवर्ड्स एजिलिटी कि ओके, अगर ये टीम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके एजाइल की इस एक चीज़ पे या इस एक स्टेप को फॉलो करके बिजनेस ओरिएंटेड हो गई है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। मैं जिस कंपनी या सीईओ की बात कर रहा था कि जिन्होंने अपने रूम को एज अ मीटिंग रूम बनाया हुआ है और वो खुद आप एम्प्लॉयज़ के साथ बाकी बैठते हैं, वो भी इनिशिएट उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि जब उन्होंने बिजनेस या प्रोडक्ट से रेलेवेंट जब डिस्कशन शुरू हुई तो वो अपना सीईओ वाला टाइटल साइड पे रखाते थे, प्रोडक्ट ओनर वाला टाइटल भी साइड पे रख के आते थे। ही वाज लाइक जस्ट अ टीम मेंबर, ठीक है। और जो दूसरी उनकी चीज़ थी, क्योंकि मैं भी उन्हीं की टीम में था, आई वाज एम्प्लॉय फुल टाइम देयर एट दैट टाइम, वो क्या करते थे कि वो क्रॉस क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से पूछते थे, जो एक लीडरशिप की निशानी होती है कि इंस्टेड ऑफ के ये आपने कैसे सोचा ये ऐसे होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट अच्छा नवीद अगर हम इसको ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। अब इसमें टीम मेंबर को ना एक मोटिवेशन मिल जाती है कि यार इन्होंने मेरी चीज़ को भी अच्छा ही कहा है, लेकिन एक और वे आउट निकाला है जिसमें हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि टीम लेवल पे और लीडरशिप लेवल पे इकट्ठी इनिशिएट करनी चाहिए, ताकि एक सर्टन लेवल तक हम एटलीस्ट इनिशिएट तो करें एजाइल को। हाँ, अगर हम ये कहें कि कोई बंदा आए और वो हमें सिखाए, वो सिखा के चला जाएगा, बट अगर स्टिल हमारा माइंडसेट नहीं बना तो हम फिर वहीं के वहीं होंगे जहाँ पे हम साल पहले थे। आई थिंक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, और मुझे वहाँ से वो एक सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन्स थी, उसका नाम मुझे रीनेम करके यहाँ पे लगता है गेम ऑफ ईगोज आ जाती है यहाँ पे, कि इज इट के हम अपनी जो ईगोज हैं उसको साइड पे नहीं रखना चाहते। आई रिमेम्बर मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप की थी, इसमें लीडरशिप टीम थी, तो उसमें वर्कशॉप बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले वो मैनेजर्स थे, वो टेक लीड्स थे, और तो मुझे ये एक्सप्लिसिटली कहना पड़ा कि आप काइंडली अपनी ईगोज और जो टाइटल्स हैं ना वो इस रूम से बाहर रखते हैं। तो वो इसलिए कहा था, और मेरे पास एक्चुअली वो एक इन्फ्लुएंस था कहने का, आई वाज फैसिलिटेटिंग दैट वर्कशॉप, और उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया था, मैंने खुद नहीं किया था, तो मेरे पास एक अच्छा मौका था। इसलिए उन्होंने आपकी बात का बुरा भी नहीं माना? नहीं, उन्होंने कोई बुरा नहीं माना, वी वर जस्ट हैविंग ए चिट चैट। और मैंने वो जैसे नवीद आपने बोला ना कि इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। तो उसमें एक कन्वर्सेशन थी, मैंने हंसी मजाक में कह दिया कि यार बड़ा अच्छा लंच था, इस वर्कशॉप शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लीव देयर ईगोज एंड टाइटल्स आउटसाइड द रूम, ताकि हम एक अच्छी फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर सके। डेफिनेटली वो अनकॉन्शियसली वो रहते हैं टाइटल, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि ताकि उन लोगों को हो के वी आर गेटिंग
ओके, ठीक है। Okay, next. यस राफिया, कोई क्वेश्चंस हैं हमारे पास? Yes, we have two more questions. One from Farhan. पहले मैं फरहान का क्वेश्चन बताती हूँ. QA, based on your experience, how is success being measured on agile initiatives in Pakistan market? Yes. और दूसरा क्वेश्चन क्या है Ms. हमारे पास? Arms. Okay, next है, the problem we face is that the product owner, also the development leads, don't like Scrum Master role as they feel it a threat to their harmony. And how we tackle that, basically how we are tackle to this कि वो लोग जो इसके अगेंस्ट हैं, आया कि वो डेवलपर हो, आया वो प्रोडक्ट ओनर हो, आया वो सीईओ, और हु इज लीडिंग दैट टीम बिफोर स्क्रम. सो उन लोगों को कैसे समझाया जाए, उन लोगों को कैसे बताया जाए, ये इन हमें बताया मोहम्मद इकराम में, आई गेस. यस, इकरम. मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा? इकरम. हाँ, मोहम्मद Yes, इकरम, yes, मोर देन please. वेलकम। एक्चुअली Yeah. ये हेजेमनी की बात थी, वो लोग अपनी अथॉरिटी को चैलेंज फील करते हैं, ठीक है। चीज़ का मैनेजमेंट चाह रही है कि इम्प्लीमेंट हो जाए एजाइल, स्क्रम इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन अगेन जो डेवलपमेंट लीड्स हैं, जो पहले डेवलपमेंट लीड्स थे, टीम को पूरी कंट्रोल कर रहे होते थे, अब वो प्रोडक्ट ओनर्स हो गए हैं, तो टीम का रिव्यू भी उन्होंने ही करना होता है बेसिकली। तो एक स्क्रम मास्टर को एक चीज़ फील करते हैं कि ये कहाँ से आ गया बीच में, मतलब टीम उन्हीं की तरफ देखती रहे, ठीक है, तो डेट्स ओके। लेकिन अगर स्क्रम मास्टर आ गया, तो प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गए, यहाँ पे चीज़ें चल गई, लोगों को थोड़ी सी अथॉरिटी मिल गई, ओपननेस हो गई, तो वो डेट विल बी समथिंग कह लें कि उनके लिए उनकी अथॉरिटी के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है चीज़ ना, तो वो एक काफ़ी बड़ी रुकावट वो वाली फील हो रही होती है, उससे कैसे निकला जा सकता है। अच्छा, इज इट ओके नवीद एंड मिसम, मैं इकरम से एक 2-3 मिनट की कन्वर्सेशन कर लें डायरेक्ट? Go ahead, please. Why It will not? help us to answer in fact. हाँ, सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये हमें आंसर देने में आसानी होगी, हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं। एनवायरनमेंट इकराम, समझ आ जाएगा ना। हाँ, इकराम, आपने ये कैसे फील किया कि उनका जो रोल है वो थ्रेट होता है, वो थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ जाते हैं? आप क्यों कह रहे हैं ये? एक्चुअली ये होता है कि जिस टाइम तक डेवलपमेंट लीड था ना, वही डेवलपमेंट मैनेजर था एक टीम का, तो वो टीम को होल्ड कंट्रोल कर रहा था, टीम उसी से इंस्ट्रक्शंस ले रही होती थी, जिस तरह वो चाह रहा है उस तरह टीम कर रही होगी। लेकिन अब अगर टीम को थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई है सोचने की, कुछ करने की, कुछ क्वेश्चंस करेगी टीम, या कुछ एस्टिमेशंस करने की कोशिश करेगी तो वो थोड़ा सा थ्रेटन फील करता है। फिर उसमें वो ये होता है कि अगर स्क्रम मास्टर भी बीच में आ गया तो शायद मेरा थोड़ा सा कंट्रोल लूज हो रहा है, ठीक है। एक फैसिलिटेटर एक डिफरेंट बंदा आ गया तो अब मेरा कंट्रोल थोड़ा सा टीम पे वो लूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि शायद मुझे कोई देखने वाला भी आ गया साथ में कि मैं चीज़ कितना चलाना चाह रहा होता हूँ, वो जो अथॉरिटी उनकी होती है वो चैलेंज होती फील हो रही होती है। अच्छा इकराम, आप किस तरह एसोसिएटेड हैं उस बंदे के साथ? आप उसकी टीम में हैं, आप दूसरी टीम में हैं, आपका रोल किस तरह है उसके साथ? ऐसा है कि मैं उसी टीम का मेंबर भी हूँ, अच्छा, और मैं स्क्रम मास्टर भी हूँ, लेकिन ये मेरी टीम का ही नहीं है ये फीलिंग, ये मैंने बाकी टीम्स में इस तरह की चीज़ें देखी हैं ना, कि स्क्रम मास्टर को एक लिमिट में रखना चाह रहे हैं कि यू आर ऑन एक लिमिट में रहे ना, आप ज़्यादा इन ना होने की कोशिश किया करें चीज़ों में। अच्छा, यानी कि आपने शेयर किया आप स्क्रम मास्टर भी हैं, उस टीम के मेंबर भी हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने क्या उस बंदे से, जो भी टेक लीड है, डेवलपमेंट लीड है, क्या इस मौजू के ऊपर एक कन्वर्सेशन करने की कोशिश की है कि यार क्या कंसर्न्स हैं तुम्हारे? कि आपने उसमें, यानी कि लुब्बे लुबाब ये है कि आपने उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश की है कि क्या कंसर्न्स है, उसको क्या रिस्क हैं अगर एक स्क्रम मास्टर आ जाए या टीम अपने डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दे? मेरी उससे इस चीज़ पे डिस्कशन हुई, जो कुछ उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ सका, बेसिकली इंडियन टीम है मेनली, ठीक है, उसमें हम पाकिस्तानी बहुत थोड़े हैं। अच्छा, ठीक है। 9 बंदों की टीम है, 7 इंडिया में इंक्लूडिंग प्रोडक्ट ओनर, 2 पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, हम नेशनैलिटीज को थोड़ा सा, मैं माजरत चाहता हूँ, नेशनैलिटीज को थोड़ा सा साइड पे कर दें, वरना वो एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे एक चीज़ के लिए मैंने वो बिल्ड करनी है ना। अच्छा, तो वो उससे जो मेरी बात हुई उस चीज़ पे, तो उसने कहा यार कि अगर हम लोगों को ज़्यादा प्रोसेस में ले आएंगे ना लोगों को, ठीक है, तो ये लड़के छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ जॉब्स बहुत हैं, ठीक है, तो हमें इनको बिल्कुल रिलैक्स रखना होता है कि एस्टिमेशन ऑनलाइन नहीं करते, मत करें, जब दिल चाहे तब कर लेंगे, ठीक है।
तो पीबीआर बस इस तरह ही होता है कि वो तुम ये स्टोरी ले लोगे, तुम ये स्टोरी ले लोगे, तुम ये स्टोरी कर लोगे। फिर अगर उनको ये कहा जाए कि स्टोरी हम पहले से साइन अगर ना करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, लोग उन तरह उठा लेंगे स्टोरीज, तो कहता नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उनका ये फियर है, प्रोडक्ट ओनर का, बजाय जो मुझसे उनकी डिस्कशन हुई, उसका ये फियर है कि ये अगर इन लड़कों को हमने आज़ादी ना दे रहे हैं, जिस तरह ये काम करना चाह रहे हैं उस तरह करें, ठीक है। वो इसको एज अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि स्क्रम आ गया, अकाउंटेबिलिटी आ गई, कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी वाला काम थोड़ा सा निकालें इसमें से। अच्छा, यहाँ जॉब्स बहुत हैं इंडिया में, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी ये लड़का मतलब हमने इसको उस तरह की लिबर्टी ना दी जिस तरह चाह रहा है, जिस तरह भी मतलब, तो ये इनको तो जॉब्स बहुत हैं यहाँ पर, तो ये अच्छा, लोग ये निकल जाएंगे। अच्छा मुझे रिटेन करना है, मुझे इनको बस किसी और तरह से चलाना होता है चीज़ों को। फिर ये एक अच्छा चीज़ बड़ा हकीकत है कि प्रोडक्ट ओनर जो है वो अथॉरिटी चाह रहा होता है, क्योंकि वही पहले डेवलपमेंट लीड थे, उनके पास होली सोली अथॉरिटी थी। अब वो अथॉरिटी थोड़ी सी चैलेंज हो रही है, अगर प्रोसेस आ जाते हैं बीच में, कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ी सी अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है। वो वाली वो अथॉरिटी नहीं रहती कि मैं ये कह रहा हूँ तो ये कर दो, अच्छा इसको छोड़ दो उसको कर दो, वो अथॉरिटी नहीं रह रही होती, वो चैलेंज हो रही होती है। लेकिन इकराम, आपने बताया कि आप खुद स्क्रम मास्टर हैं, तो आपकी जो आपने भी जो शेयर किया, मुझे इस तरह लग रहा है कि जो कंसर्न्स और जो फियर्स हैं वो एक लॉजिकल बेसिस पे नहीं है। मैं जो मेरा ओपिनियन ये है, बाकी लोगों का चाहे डिफरेंट ओपिनियन हो, तो आई थिंक अगर वो ये कह रहे हैं कि जो टीम जिस तरह करना चाहती है वो कर लें, तो आई थिंक एजाइल और स्क्रम में यही चीज़ें तो इन्वॉल्व की जाती हैं कि आप जो टीम को थोड़ी सी फ्रीडम दें, उसको डिसीजन मेकिंग दें, और उनका ये सिर्फ कंसर्न है कि अगर इनको थोड़ी सी फ्रीडम दी तो ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें मुझे तो कुछ लॉजिकल रीजन मुझे समझ नहीं नहीं, आ रहे। फ्रीडम फ्रीडम उस तरह नहीं ना जी। अगेन वही बात है, सपोज कर लें हम उन्हें कहते हैं कि यार अगर दिन में काम किया है ना, तो शाम के स्टोरी पे थोड़ा सा उसका पेट भर जाए, जिस पे स्टोरी पे काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, ठीक है। तो कहेंगे नहीं, अगर हम इनको इस तरह करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, आप मत कहेंगे, नहीं भरेंगे इस चीज़, ठीक है। अगर हम अच्छा, उनको कहते हैं कि ऑनलाइन एस्टिमेशन कर लेते हैं, ठीक है, प्लानिंग पोकर कर लेते हैं, कोई और टेक्निक कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, लेट देम डू जिस दी वे दे डू। लेकिन अगेन वही बात होती है कि वो खुद लीड करना चाह रहे होते हैं, वो स्क्रम मास्टर को बेसिकली थोड़ा सा कॉर्नर पर रखना चाह रहे होते हैं, स्क्रम मास्टर कॉर्नर पर है, ठीक है, लेट अच्छा, लेट हैंडल द थिंग्स। और ये मेरी टीम में नहीं है, ये मतलब मैंने एटलीस्ट ज़्यादा टीम्स में ये चीज़ देखी है कि प्रोडक्ट ओनर्स जो हैं, चूंकि वो पहले लीड थे टीम के, ठीक है, तो वो टीम को अपनी तरफ डायरेक्टेड ही रखना चाह रहे हैं 100%। वो किसी प्रोसेस को, उन चीज़ों को नहीं आने देना चाह रहे। हमें वो ये कहते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें आ गई तो ये कहेंगे कि यार हमें तो ये भी करो वो भी करो, तो लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट जॉब। तो इसलिए रिलैक्स रहें। अब होता क्या है कि जी डेली स्क्रम नहीं होना जी, क्यों नहीं होना, बस ये टीम फील कर रही है कि नहीं होना, प्रोडक्ट ओनर कहेगा कि टीम फील कर रही है नहीं होना, तो नहीं होना जी, अच्छा, चलेंगे, ठीक है। अच्छा स्प्रिंट रिव्यू नहीं होना जी, तो क्योंकि तो प्रोडक्ट ओनर कह रहा है कि नहीं होना, उसको बताते रहे कि यार ये मतलब फायदा होगा, ये होगा वो होगा, नहीं ये जरूरत नहीं है। अच्छा, चलिए मैं एक क्विक कमेंट दे दूँ, उसके बाद आई थिंक मुझे तो जहाँ तक नज़र आ रहा है कि जो टीम का जो कल्चर है, इट्स नॉट फैसिलिटेटिंग फॉर मोर इनोवेटिव वर्क। और ये है कि आई थिंक ये भी डिसीजन करना चाहिए टीम को बैठ के कि अगर वो एक रेट्रोस्पेक्टिव या रिव्यू करना चाहते हैं या डेली स्टैंड अप करना चाहते हैं, वो तो टीम के लिए है। तो टीम को कौन से डिसीजन लेने चाहिए और प्रोडक्ट ओनर को किस लेवल का डिसीजन करना चाहिए। शायद आई थिंक इकराम, इसमें आप खुद, एक मैं आपको इंक्वायरी देता हूँ, आप इस पे क्वेश्चन पे सोचें कि इस सिचुएशन में आप अपने आप को कॉम्पिटेंस वाइज या नॉलेज वाइज किस तरह स्टेप अप कर सकते हैं कि जब वो प्रोडक्ट ओनर आपसे क्वेश्चन करा तो आप उसको मोर रीजनिंग के साथ आंसर दें कि फीलिंग्स डेफिनेटली ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रम फॉलो कर रहे हैं तो इसके बाकी जो कोई भी फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं फॉलो करने के और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आई होप कि अगर उसको आपने अगर पहले ट्राई किया, जबरदस्त, एक्सीलेंट, शायद दोबारा कोशिश करें। नवीद और मिसम क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कल्चरल भी चीजें हैं क्या, आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं इस बारे में जो मोहम्मद इकराम ने क्वेश्चन किया था। वेल मैं इसका पहले आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि एक कंपनी में मैंने भी ऐसा ही इन्वायरमेंट
ऐसा ही बंदा एक फेस किया था। एक्चुअली ये कल्चरल इशू है, ये एनवायरनमेंट का इशू है। जो टीम है वो डेवलपमेंट लीड को इसलिए सपोर्ट कर रही होती है क्योंकि उसमें उसका रिव्यू देना होता है, ठीक है। अब वही डेवलपमेंट लीड अगर बगैर प्रोडक्ट ऑनर के जॉब डिस्क्रिप्शन या उसको क्या करना चाहिए प्रोडक्ट ऑनर को, बीइंग प्रोडक्ट ऑनर, उसके बगैर ही अगर वो प्रोडक्ट ऑनर बन जाएगा तो उसका माइंडसेट जो है वो डेवलपमेंट लीड वाला ही है कि मैंने जो कह दिया आपने वही करना है, ओके। अब दूसरी चीज़, जैसे कि इकराम साहब ने भी बताया कि स्क्रम मास्टर को वो निगेट करते हैं कि भाई ये ना ही आए हमारे पास, वो जो भी कहेगा हमने उसके अगेंस्ट ही जाना है। ये टिपिकल वो डेवलपमेंट लीड वाला एक माइंडसेट है जो कि एजाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऑल्दो ही इज हैविंग अ टाइटल ऑफ एजाइल कि वो प्रोडक्ट ऑनर है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा कि मेरी अथॉरिटी रहे। अगर वो प्रोडक्ट के बारे में सोचे तो वो डेफिनेटली ऐसा नहीं सोचेगा। इवन हमारे साथ एक केस हुआ था कि हमारे लीड ने हमें कहा कि जी पीएमओ डिपार्टमेंट आपको कोई भी काम कहता है तो आपने नहीं करना, ठीक है, आपने नहीं करना, ओके। ये तो पॉलिटिक्स होगी नवीद। ये ऐसा होता है, ऐसा होता है यहाँ पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि हमारी बेस एक ही है ना वो शुरू में, तो वो हम लोग तो ऐसे ही हैं और हम चेंज भी नहीं होना चाहते। मज़े की बात ये है, तो हमें टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें अडेप्ट करने में। मुझे इकराम साहब की जो बातें थी ना, वो एक पुराना मेरा जॉब एक्सपीरियंस था। उसमें जब मैंने जॉब की और देन नेक्स्ट कंपनी पे मूव हुआ तो वहाँ पे सीईओ मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा जी कि मुझे अभी तक ये फील हो रहा है, मतलब उन्होंने अपना एक ओपिनियन शेयर किया कि हमारी इंडस्ट्री में यानी पाकिस्तान में जितने भी एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, they are still traditional project managers but having a coat of agile। और वो जो लोग हैं ना, वो लोग एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं या चलने नहीं देते, और ये जिस तरह की एग्जांपल इकराम साहब ने भी बताई, ये उन लोगों का शुमार इनमें होता है कि they don't want to change their self but they want to change surrounding things। जब तक वो खुद चेंज नहीं होंगे डेफिनेटली वो चेंज 100% एक्सेप्ट नहीं होगी। इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। 2016 में एक कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया जी कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लिबर ऑफिस पे शिफ्ट होना है ओपन सोर्स की तरफ, आप हमें लिबर ऑफिस की ट्रेनिंग दें। मैंने कहा ठीक है, मेरा उसमें एक्सपीरियंस था काफ़ी हद तक यूज़ करने का, तो हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की तकरीबन 6 मंथ्स के बाद उन्होंने कहा जी कि हमने चेंज नहीं लानी। अच्छा, रीज़न? कहते नहीं, एक्चुअली हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है ना उनको पसंद नहीं आया। मैंने कहा उन्होंने चला के देखा इसको? कहते नहीं, वो तो एमएस ऑफिस ही यूज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर चेंज कैसे आएगा जब आपका आधे लोग उधर हैं और आधे लोग इधर हैं, और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं दे डोंट वांट टू चेंज देयर सेल्फ, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हम कॉस्ट कट कर लें और बाकी लोग लिबर ऑफिस पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये नहीं हो पाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ मैं देख रहा हूँ फरहान जावेद साहब का, उसका मैं अगर आंसर अभी कर दूँ या बाद में करूँ नेक्स्ट राउंड में? देख लेते हैं। लेकिन इकराम आई थिंक काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई सी कि इट्स वेरी वेरी कल्चर रिलेटेड, और डेफिनेटली अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आई डोंट नो हम इसको अभी कुछ मिनट्स में फुली तरह कर देंगे, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। और होपफुली आप अपने हमारे चैनल से उसमें शेयर करें तो आई थिंक देयर विल बी मोर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन का नवीद आपने पूछा, लेकिन उस पर जाने से पहले मिसम बहुत ही एक डीप थिंकिंग प्रोसेस में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनसे पूछा जाऊँ कि आप क्या सोच रहे हैं इस कन्वर्सेशन के बारे में। आई गेस जो मेन चीज थी ना वो वही थी कि टाइटल है प्रोडक्ट ऑनर का, एसेंस नहीं है, खोखले, पता नहीं क्या होता है प्रोडक्ट ऑनर। तो अगेन वो जिस माइंडसेट के साथ हैं वो उसके साथ हैं। खैर ये चलता रहता है। अगर इसको हल करना हो, एक और सवाल भी था, स्क्रम को किस तरह इम्प्लीमेंट करना। बट कमिंग बैक टू दिस इकराम साहब्स क्वेश्चन, एक फ्रेम होता है एक, अगर आपने देखा देयर इज अ वेरी गुड थ्योरी कि आप लोगों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपकी उनसे इंटरेक्शन, उनसे क्लोजनेस जब तक नहीं होगी, ओपननेस नहीं होगी, आप एक अलग आइलैंड पे रह के बातचीत कर रहे होंगे, वो एक अलग आइलैंड पे रह रहे होंगे, वेवलेंथ मैच नहीं करेगी। आपको लगेगा मैं आपने बात बिल्कुल ठीक कम्युनिकेट की, अगला बंदा नहीं समझ रहा, लेकिन वो भी ऐसा ही आपके लिए सोच रहा होगा कि यार मैं अपना पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, पता नहीं इसको क्यों नहीं समझ आ रहा, बड़ी सिंपल सी बात कर। इसका सिंपल सा
हल है, लेकिन वो थोड़ा सा वक्त तलब है, इतनी जल्दी थोड़े से वक्त में बताया नहीं जा सकता। बट ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि उस बंदे से, उस शख्स से, वो जो साहब भी हैं, बेबी वो डिफरेंट डेमोग्राफिक में बैठ रहे हैं, जोग्राफिक लोकेशन डिफरेंट है, बट आपकी थोड़ी क्लोजनेस हो ना, थोड़ी फ्रेंकनेस हो, उसको थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, उस रूट कॉज पे जाइए जो वो आपको एज अ थ्रेट फील कर रहा है अपने लिए। What's the point of implementing agile or scrum if you are not following their ceremonies? वो कोई एक रूट कॉज तो होगा जिस पे वो डिसएग्री करते हैं, बिकॉज agile और scrum is all about the transparency. Again, every company would talk about being the customer centric. तो अगर आपका मिशन विजन स्टेटमेंट है कि कस्टमर अव्वलियत रखता है, फौकियत रखता है आपके लिए, तो फिर आपने वो हर चीज करनी है जो कस्टमर के लिए फायदेमंद हो, ना कि सेल्फ ईगोस के लिए या आपस की चीज स्कोर सेटल करने के लिए। तो आपको अगर उस बारे में, उस शख्स के बारे में जानना है, उससे क्लोजनेस करनी, तो पहले आप कुछ चीजें उसके साथ बैठ के शेयर कीजिए जिससे लगे कि आप उस पर ट्रस्ट करके अपनी को पर्सनल ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं जो शायद कोई और ना जानता हो, just to give him some faith कि I do not feel any threat from you and let's try to help each other, let's build some healthy or trustworthy relationship between us. I'm very sure कि ये help करेगा, but that's a hell lot of theory on that. I think miss some very good point. आपने बहुत ही अच्छा point raise किया कि often हम relationship नहीं build कर पाते कि जिसकी बेस के ऊपर हम चीज़ों को आगे लेके चल सकें। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। राफिया, हमारे पास कोई और क्वेश्चंस हैं जो हम ले सकें अभी? बिल्कुल, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, वेट कीजिए। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट हमने स्केड्यूल किया था, क्या कहते हैं 5 मिनट और एक्सटेंड कर लें चीज़ों को रैप अप करने के लिए? नवीद, आपके पास और मिस टाइम है आपके पास? जी, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है। आपकी आवाज़ कट रही है नवीद, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट है 5:15 पे, तो तब तक हम कर सकते हैं एक्सटेंड। अच्छा, 5:15 है, चलें, जबरदस्त। लेकिन हम 5-10 मिनट। जी राफिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ओके, फॉर एग्जांपल जो डेवलपर्स हैं वो स्क्रम को सेरेमनीज का ओवरहेड करते हैं। डेवलपर टेक्स द स्क्रम सेरेमनी एज ओवरहेड, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एटीट्यूड? और क्या कहते हैं नवीद मिसम कि इवेंट्स, आई थिंक क्या हमने इस पॉइंट को टच किया है कि जो इवेंट्स को या मीटिंग्स को क्यों स्किप करते हैं? ये थोड़ा सा टेस्ट है। अच्छा, हमें पता है कि वो इज दैट पर्सन इन दिस कन्वर्सेशन, कि उनसे हम पूछ लें कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताकि हम डिसाइड कर लें किसको हम कर सकते हैं, ताकि बैलेंस हो जाए काम थोड़ा सा। इसका मैं क्विक आंसर, हाँ क्विक आंसर कर दें, तब तक राफिया दूसरा क्वेश्चन। एक्चुअली डेवलपर्स का ना एक माइंडसेट होता है कि जब हम काम कर रहे हैं ना तो हमें कोई डिस्टर्ब ना करें, और ये जो माइंडसेट होता है ना, ये प्योर जो डेवलपर माइंडसेट का बंदा है ना उसका तो है, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है उसका ये नहीं होगा। वो टाइम देगा सारे इवेंट्स को, ठीक है। और हमारे यहाँ पे लोगों का माइंडसेट जो ना वो फिक्स्ड माइंडसेट ज़्यादा पाया जाता है। अब मे भी आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी, 2 तरह के माइंड्स होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। तो हमारे यहाँ यानी इस डेमोग्राफिक में जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, और हम अपनी चीज़ों को हिलाना भी नहीं चाह रहे, चेंज भी नहीं करना चाह रहे। हम चेंज भी इसीलिए फिर देर से एक्सेप्ट करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू में एजाइल में आया और हमें जब कहते थे कि जी आएँ जी मीटिंग में, हम कहते थे यार क्या अब अपना काम छोड़ के जाएँ, 10 मिनट वहाँ लगाएंगे, काम की बात तो होनी नहीं है, सारा स्टेटस सबको पता है। बट फिर भी जाते थे, लेकिन उस वक्त दिल नहीं होता था। लेकिन अब हम जब जाते हैं ना, तो अब हम दूसरों को थोड़ा सा एक वो स्पेसिफिक कह लें कि नॉट ओनली वर्क, थोड़ी सी एक ना फन, एक मज़ाह पैदा कर दिया, ताकि लोगों को थोड़ी इंटरेस्ट हो कि यार हम जाएंगे, चलो अपनी बात तो बताएंगे, चलो दूसरों की भी सुन के आएंगे वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा मेरा ख्याल है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों को एहसास होगा कि वहाँ जाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमें हफ्ते के बाद पता चलता है कि फलां टास्क में ये हर्डल आ रहा है, एटलीस्ट वो अगर हमें 4 दिन पहले ही एक मीटिंग में पता चल जाता है, एक जस्ट गैदरिंग में वो बंदा हमें बता देता, स्टैंड अप मीटिंग अगर मैं उसका नाम दे दूँ, तो वो काफ़ी हद तक आसानी हो जाती। एक मैसेज आया हुआ है फरहान साहब का कि माई स्टिल देयर। इनका क्वेश्चन वही है, बेस्ड ऑन योर हाउ
how is success being measured in agile initiatives in Pakistani market? जी फरहान साहब, आपका मैंने आंसर लिखा हुआ है, मैं अगेन खुरम साहब से पूछूंगा कि इसका आंसर दे दूं या नेक्स्ट राउंड में करें हम? आई थिंक हमारे पास एक क्वेश्चन काइल की तरफ से है, एक क्वेश्चन काइल की तरफ से, फरहान की तरफ से। अच्छा We have to. जी फरहान अच्छा वाला करता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। So let's start with फरहान इन ब्रीफली। नवीद, आपके क्या इसके बारे में कमेंट्स हैं? देखें, जैसे उन्होंने पूछा कि हम कैसे ये जांच पाएंगे कि भाई एजाइल हमारा इनिशिएटिव, मतलब कैसे मेजर करेंगे सक्सेस को? वेल, मैं इसको 3-4 चीज़ों में पॉइंट कैटेगराइज करता हूँ कि अगर तो आपके सक्सेसफुल डिलीवरेबल्स जा रहे हैं, अगर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीम्स कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी हैप्पी टीम्स हैं और आपकी कंपनी ग्रोथ है, तो इट मीन्स कि आप एजाइल सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आपकी चीज़ें अलाइन हैं। अगर आप इसके पार्शली इनको अचीव कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, बट यू नीड मोर पेशेंस, मोर गाइडेंस कि आपको कहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी ये चारों में से कोई एक चीज़ भी पूरी नहीं हो रही तो या तो आप गलत स्टेप्स ले रहे हैं या फिर आप यू नीड ऑडिट, एजाइल ऑडिट कह लें, क्या चीज़ें हम गलत कर पा रहे हैं। ये मेरी 2 पॉइंट। अच्छा, अगर इसमें मैं ऐड करूं, आई थिंक जो एजाइल की जो सक्सेसफुल चेकलिस्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म में है, और वो मैं ये कहता हूं कि आप फरहान ये देख लें कि जो मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो जो 4 वैल्यूज है उसको सामने रखें, और जो उसके जो 12th गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना उसको सामने रखें और चेक करें कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं। अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है, 7th जो प्रिंसिपल है मेरे सामने, मैंने भी जल्दी से खोला, वो ये है कि 7th प्रिंसिपल है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर यूजेबल है जिसके ऊपर आप फीडबैक कर सकते हैं, देन यू आर डूइंग दैट। और उसमें और जो पॉइंट नंबर 4 है, प्रिंसिपल नंबर 4, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कि अगर आपके बिजनेस के लोग और जो डेवलपमेंट के लोग अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनके अंदर डिस्कशंस हो रही हैं, तो देन यू आर आल्सो डूइंग एजाइल। सो आई थिंक फॉर मी, जो मैंने जो इसको एज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने एज अ चेकलिस्ट यूज किया है वो है दीज 12 प्रिंसिपल्स, कि अगर कहीं पे भी कुछ चीज़ कम है तो देन बीइंग कोच, फैसिलिटेटर, आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट अप। मिसम, आप कैसे इसको मेजर कर रहे हैं एजाइल सक्सेस को? अब आई गेस आप लोगों ने काफ़ी बेहतर आंसर दे दिया है। मैं जस्ट एक ही वर्ड में इसको क्विकली सम अप करने की कोशिश करूँगा। चाहे पाकिस्तानी मार्केट हो चाहे कोई भी हो, मेरे एक्सपीरियंस में जो मेजरमेंट का फैक्टर था वो था कस्टमर फीडबैक, पीरियड। एक्सीलेंट। मिसम ने जो डॉट लगा दिया वो ये स्टेटमेंट करके डॉट लगा हाँ दिया। जी। हमारे पास और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आई थिंक हमारे जो काइल का क्वेश्चन क्या था राफिया? Yes, Kyle question था, if I want to introduce Scrum in my organization, then what should be key starting point on which I have to focus? इनफैक्ट ये कायल नहीं है, ये काविर है। अच्छा, वो हमें काइल ने अच्छा हाँ, जो हमें नजर आ रहा है हम वही बोल रहे हैं। डॉक्टर नवीद इस्लाम, आई वुड लाइक वेल, कावर साहब का जो है कि वो क्या करें, मेरे ख्याल में तो पहले वो स्क्रम या एजाइल के जो मैनिफेस्टो हैं, 12 प्रिंसिपल्स हैं, एसेंस है, उसका थोड़ा पहले नॉलेज लें, एटलीस्ट थ्योरी थोड़ी सी पूरी कर लें, देन वो प्रैक्टिकल कुछ कह लें कि स्प्रिंट्स को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करके देखें। बेशक टेस्ट रन पे ही देखें, लेकिन एटलीस्ट इनिशिएट जरूर करें, क्योंकि डूइंग इज बेटर देन परफेक्ट। आज इनिशिएट करेंगे तो कल थोड़ी सी परफेक्शन की तरफ मूव हो सकते। जबरदस्त। आई थिंक नवीद का भी नेक्स्ट मीटिंग स्टार्टिंग वाइल, आपको भी थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होगी। नवीद इकराम ने कहा कि लेट्स ट्राई टू सम इट अप। मैंने कुछ नोट्स लेता हूँ इस कन्वर्सेशन के दरमियान, तो मैं आई थिंक दोस कुड बी सम अप पॉइंट्स। जो मेन टॉपिक हमने जो स्टार्ट आए थे, आई थिंक वी नीड टू
think about delegation कि हमारे पास जितनी अथॉरिटी है या इन्फ्लुएंस है हम बजाय अपने पास रखें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर एक पॉइंट था कि लीडरशिप की एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए कि इन ए वे के एक्सक्यूज मी जो लीडरशिप कहते हैं कि यार अच्छा ये तुम्हारा एजाइल बबल है इसमें जो तुमने करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं कहना। हालांकि ये टोटली डिफरेंट है बिकॉज यू नीड टू थिंक अबाउट टीम एजिलिटी, लीडरशिप एजिलिटी, बिजनेस एजिलिटी, और वो बिजनेस जिसके आर्किटेक्चर जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है वो बिजनेस एजिलिटी की तरफ नहीं जा सकता। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एजिलिटी कितनी ज़्यादा है तो आप ये चेक करें कि आप एक फीचर कितनी देर में रिलीज कर सकते हैं। तो ये एक चेक लिस्ट है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाए। एक ये कायल ने भी कहा था कि किस तरह इसको स्क्रम को इंट्रोड्यूस किया जाए। आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनल एजुकेशन एंड स्किल अप, कि अगर आप एक चीज़ चेंज लाना चाहते हैं दूसरे में तो आप उसको खुद आपका उसका नॉलेज क्या है, उसका आप अपने बिहेवियर्स क्या कर रहे हैं, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ उस तरह समझ लें कि आप एक बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप यू टीच बाय डूइंग इट। और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड कि हम सिर्फ लीडरशिप से एक्सपेक्ट ना करें। और ये एक मेरा पॉइंट पिछली जो टॉक मैंने दी थी लीडरशिप के ऊपर आइजाइल पीके पे, उस पे भी यही था कि आप मैनेजमेंट को, लीडर्स को सिर्फ लीडर्स ना समझें, आपके अंदर भी एक लीडर है जिसको आपने खुद जगाना है। वो आपका जो दरवाजा है ना वो अंदर से खुलेगा, आप बाहर से जितना मर्जी नॉक करते रहें उसका कुछ नहीं है। ये जो हमने पैनल डिस्कशन किया है ये मकसद ये था कि थोड़ी सी इंस्पिरेशन दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम आपको सफ़र के बारे में तो बता सकते हैं कि लाहौर से कराची का या इस्लामाबाद का सफ़र ये है, हम उसको आपके लिए नहीं तय कर सकते। वो जो स्टेप्स हैं आपने खुद ही वो करेंगे तो आप आगे जाएंगे। अथॉरिटी के ऊपर भी ये था। अथॉरिटी का ये है कि आई थिंक मिसम और नवी दोनों ने अच्छे पॉइंट्स रेज किए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन डेवलप मोर पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि हम अब लेट नाइट तक हम गपशप लगाते रहें और ताश खेलते रहें या पोकर खेलते रहें, जो भी है। मीनिंग ये है कि जो मोहम्मद इकराम का भी पॉइंट था, आई डोंट नो इफ इट्स विद अस राइट नाउ, कि एक दूसरे को सिचुएशन को समझें कि अगर प्रोडक्ट ओनर है या टेक्निकल लीडर, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या कंसर्न्स हैं और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक बोट में एक ही सफ़र कर रहे हैं। फियर एंड कंसर्न्स, आई थिंक दिस इज़ पॉपिंग अप अगेन कि अपनी अपब्रिंगिंग करें, नॉलेज एक्वायर करें, दूसरों से प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन करें और रिलेशनशिप इस तरह डेवलप करें कि वो बंदा थ्रेटनिंग ना फील करे, उसको कंसर्न ना हो। और चेंज एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक हम फ्रेमवर्क्स का काफ़ी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपकी अपनी बिहेवियरल चेंज कैसे लाई जा सकती है। तो ये आई होप जो की पॉइंट्स से जो पॉपअप हो रहे थे, जस्ट टू के क्विक नोट। और आई होप के नवीद इकराम जो आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया और हम इसको सम अप कर सकें। Any last comments from you, Naveed and Misam, before we also have one more thing to share? जी नवीद साहब। वेल मेरा एक ही बस पॉइंट है कि हम लोग ना सेल्फ लर्निंग पे बिल्कुल फोकस, और वही रीज़न है कि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई दूसरा कर ले, अगर वो उसका साथ सक्सेसफुल केस हो गया तो फिर हम इसको अडेप्ट या अडॉप्ट करेंगे। अगर हम खुद से थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करें और कुछ चीज़ों को अडॉप्ट या अडेप्ट करना शुरू करें तो ख्याल हम बेहतर पोजीशन पे। समहाउ कोविड-19 की वजह से हम कहीं जा तो सकते नहीं, तो ये बेहतरीन टाइम है कि हम अपनी स्किल्स को, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें, सेल्फ लर्निंग में टाइम दें। जबरदस्त नवीद, थैंक यू वेरी मच। सेल्फ लर्निंग, मिसम आपकी क्या टेक अवे है, क्या कहते हैं आप? प्रीटी मच द सेम जी। अपने आप में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, अपने आप को वक्त देना, अपने आप को खुद जानना भी ज़रूरी है कि आपकी नेचर क्या है। वो इकराम साहब वाली बात पे मेरा एक कमेंट था, और जब आप अपने आप को जान पाएंगे तो शायद दूसरों को समझा भी पाएँ और समझ भी पाएँ।
अपने आप में प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। वक्त है, रमज़ान है, आई गेस रोज़े चल रहे होंगे, बीइंग पार्ट ऑफ दिस होली मंथ। मेरे ख्याल में जितनी इबादत कर सकते हैं कीजिए, और किताबों का शौक़ दोबारा से अपने अंदर पैदा कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ज़रा हाथ में लेके किताब पढ़ने का मज़ा अलग है, उसकी फीलिंग अलग है। तो कोशिश कीजिए कि किताबें अच्छी पढ़िए और अपनी नॉलेज बढ़ाएं मज़ीद। एंड स्टे सेफ वेयरएवर यू आर। ज़बरदस्त। राफिया, आप क्या कहती हैं बीइंग होस्ट, आपका क्या टेक अवे कन्वर्सेशन से? मेरे एंड पे तो यही है कि बिल्कुल अपना आप साथ रिटर्न लोग करते हैं आपको, आपके ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, बिकॉज उस बंदे का भी आप उसको आपकी उसकी पोजीशन हिल रही है या उसकी पोजीशन है, लेकिन ये है कि आप इसको हेल्दी आप इसी वे में कर सकते हैं जब आपके पास इनफ नॉलेज हो कि आप उसको सेटिस्फाई कर सकें अपनी सब बातों से। सो बीइंग अ परस्यूअर एंड बीइंग हैविंग अ गुड नॉलेज, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ये है कि आप अपने आप पे टाइम दें। ज़बरदस्त। और आई थिंक आई एग्री कि हमने कोई एक टॉपिक नहीं डिफाइन किया था, मकसद ये था कि हम एक ओवरऑल जो है ना वो सिचुएशन को देखें। हाँ, और सेल्फ लर्निंग की बात हो रही है, और आई थिंक हम एज ए पाकिस्तान एजाइल स्क्रम एक्सचेंज हम ऑनलाइन मीटअप्स करते रहते हैं, एजाइल पीके वाले भी मीटअप्स करते रहते हैं। आई हाईली इनकरेज कि आप लोगों के इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करें ताकि आपको कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले। मेरे वर्क कल्चर डिफरेंट है, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस हैज़ ए डिफरेंट वर्क कल्चर, लेकिन उसमें यह है कि हम उससे एक दूसरे को हेल्प कैसे करें। Besides that, हम just kind of promotion, not promotion, was sharing. हमारे upcoming events भी हैं on 13th May. We are talking about story points. और उसके बाद 16 and 17th May को हमारा एक Scrum at Scale का कोर्स भी है. And on 30th and 31st May, 2 weekends पे है, Agile Team Facilitation के ऊपर है. तो एक है कोर्स फ्रेमवर्क्स के ऊपर Scrum at Scale का, और दूसरा है फैसिलिटेशन का, which very much focused on relationship, which focuses on behavioral, और आपने एक कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट कैसे करना है कि मोर प्रोडक्टिव कर सकें। तो आई एम शेयरिंग लिंक्स इन द चैट if you are interested. Both Zishan and myself, we are very much supporting कि हम अपनी local community को जितना help कर सके करें। We are giving I think Zishan already did a course in Scrum at Scale 1-2 हफ्ते पहले, और हम दोबारा कर रहे हैं कि जितने लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं वो कर लें। वो लोग जो कि इस कोविड से इम्पैक्ट हुए हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। आई हैव शेयर द लिंक्स इन द चैट, प्लीज़ टेक सम टाइम आउट, इनको सेव कर लें, और इनको अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन रीच आउट टू ज़िशान और यू कैन रीच आउट टू मी फॉर रिस्पेक्टिव कोर्सेज। और इफ़ यू नो ज़मान जो कि हमारे साथ इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं, so just reach out to us. We are more than happy to help you. Rafia, how are we ending it? Is that the end? Before Yes, yes, this is the end. जी मुस्लिम कुछ, Thank you so much everyone. मुस्लिम Yes. मुस्लिम कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बोल रहा था? just a quick note. I just wanted to thank Pakistan Agile Scrum Exchange, the initiative that you guys have taken. The industry need more and more such sort of initiatives, और हम collaborate करें ये और भी अच्छा होगा. Many thanks for inviting me and Naveed from Pakistan Agile Development Society. We really enjoyed this, and we do pray and we do all our efforts so that the industry evolves and they adopt Agile in its true sense. So I really enjoyed it. Thank you so much. Thank you Mislam, thank you Naveed, and thank you Rafia. जी राफिया कुछ और कहना है? I think आप होस्ट हैं। No, thank you right now. Thank you so much everyone. Thank you Miss Ham. Thank you Nadeem, Naveed. Thank you everyone. थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा और स्टे होम और स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। Stay safe. Okay, Yes. Allah Hafiz.